پاکستان میں بحران کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پاکستان میں اس وقت مضبوط حکومت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 4 نہیں 10 ارب ڈالر ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان کے واجب الاداد قرض وقت پر واپس کر رہے ہیں۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر بہت جلد دوبارہ مستحکم ہوں گے۔ کمرشل بینکوں کے پاس موجود 6 ارب ڈالر بھی پاکستان کے ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ سعودی عرب سمیت دوست ممالک سے فنڈز جلد پاکستان کو منتقل ہوں گے۔ ایل سیز نہ کھلنے سے ملک میں 30 سے 40% انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کی پریس کانفرنس، کہا حکومت نہ بدلتی تو ملکی معیشت کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے وزیر اعظم کو فون کرنے کی تردید کر دی۔ فون کال کا کہہ کر بھی قوم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے سخت شرائط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ کیس ختم کرانے آنے والوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمارا کسی سے اختلاف نہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں منحرف اراکین کی نئی سیاسی جماعت بننے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پنجاب میں اعتماد کے ووٹ کے لیے ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ موجودہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں۔ حکمران سعودی عرب اور چین سے امداد کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ دو وقت کی روٹی کے لیے پہلی شہادت میرپور خاص میں ہو گئی۔ اب مہنگائی کی جگہ ٹھکائی مارچ ہو سکتا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید بولے زر مبادلہ کے ذخائر 4.5 ارب ڈالر رہ گئے، جو 20 روز سے کم کا امپورٹ ہے۔ 9 ماہ کی تباہی اور ڈیفالٹ سے بچنے کا روڈ میپ چاہیے۔ 76 رکنی کابینہ ایک آٹے کا تھیلا نہیں دے سکی۔ 100 دنوں میں الیکشن شیڈیول دینا ہوگا ورنہ تباہی ہوگی۔ سیاسی منظر نامے پر نئی صف بندی۔ جہانگیر ترین گروپ کے سینئر رہنما اون چودھری نے نئی پارٹی بنانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا جہانگیر ترین، علیم خان یا چودھری سرور کوئی نئی جماعت نہیں بنا رہے۔ ہم اس وقت حکومت کا حصہ ہیں اور حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ اگر ایک زرعی ملک میں آٹے کے لیے عوام مرنے لگے تو اسے ہی ڈیفالٹ کہتے ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کہتی ہیں کل سندھ میں ایک شہری سستا آٹا لیتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا۔ حکومت پاکستان عملی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ جعلی حکومت کے نااہل وزراء کے چہروں پر کوئی شرمندگی نہیں۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تمام تیاریاں مکمل ہو گئی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں بینچ کا محفوظ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے MQM کی جانب سے دوہری لسٹوں کا الزام رد کر دیا۔ کراچی اور حیدرآباد کے الیکشن کا شیڈیول تبدیل نہیں، صرف تاریخ ملتوی ہوئی۔ مہنگائی رے مہنگائی، ملک بھر میں عوام کی ایک ہی دہائی۔ سستے بازاروں میں مہنگائی کا جن بے قابو۔ حکومت کی ناکام پالیسیوں سے شہری بھوک سے مر رہے ہیں۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں 7ویں آسمان پر۔ چکن کی قیمت ملکی تاریخ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی کلو گوشت 700 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ سبزی، چاول، پھل اور دیگر اشیاء بھی عام شہری کی پہنچ سے دور۔ پنجاب میں آٹا بحران کے خاتمے کے لیے اہم اقدام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا گندم کا سرکاری کوٹا ڈبل کرنے کا اعلان۔ کہا فلور ملوں کو گندم کا یومیہ سرکاری کوٹا بڑھا کر ڈبل دیا جائے گا۔
गंदम व आटे के बहरान से निपटने के लिए सरकारी आटे की फरोख्त के मकामात को भी दुगना कर दिया है। सूबे भर में रोज 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। पंजाब में गंदम की किल्लत नहीं, तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब और डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर नईम अफजल ने कहा, सूबे में गंदम का कोटा बढ़ाकर 23,000 टन कर दिया। खुदबुर में मुलव्विस 100 मिलों का लाइसेंस मुअत्तल करके मुजमूई तौर पर 11 करोड़ रुपए के जुर्माने किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब पेशावर में आटे की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद नान भाइयों ने रोटी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। 170 ग्राम की रोटी 30 रुपए की फरोख्त होने लगी। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे इंटरनेशनल सीरीज की ट्रॉफी की निकाब कुशाई की तकरीब। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और न्यूजीलैंड कप्तान केन विलियमसन ट्रॉफी की निकाब कुशाई में शरीक हुए। दूसरी जानिब कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरफराज अहमद ने तवील इंतजार किया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वाइट बॉल का मोमेंटम कायम रखेंगे। शान मसूद प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं, मीटिंग में तय किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मांझ। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क तबाही और अरूज की तरफ भी जा सकता है। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बहरान है। मुल्क में फैसला कुन वक्त है। पाकिस्तान आज मसाइल का शिकार है। 90 की दिहाई के बाद पाकिस्तान जवाल का शिकार हुआ। पाकिस्तान में बहरान का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है। बहरान मजीद बढ़ेगा, हम मुकाबला करेंगे। 20 साल दो खानदान एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे। कराची में खवातीन कन्वेंशन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पीडीएम की सारी तरक्की इश्तिहारों और प्रोपेगेंडा में होती है। साफ और शफाफ इलेक्शन से ही शफाफ हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए मजबूत हुकूमत चाहिए। हम तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से कैसे निकालना है, सबने मिलकर जद्दोजहद करके मुल्क को बहरान से निकालना है। पीडीएम का मकसद अपनी चोरी बचाना था। उन्होंने नैब तरामीम करके करप्शन की इजाजत दे दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क में सबसे पहले साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त मजबूत हुकूमत की जरूरत है। आटा मिल नहीं रहा, लोग आटे के हसूल के लिए जाने गंवा रहे हैं। पाकिस्तानी मायूस होकर मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। मौजूदा हुकूमत एजेंडे के तहत आई, मुल्क दुश्मनों का एजेंडा पूरा हो रहा है। इससे कबल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की एक मजबूत पॉलिसी की बजाय इंटेलिजेंस फोकस जाली ऑडियोज और वीडियोस की तैयारी पर है। हम दहशतगर्दी में खतरनाक इजाफा देख रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी एहलकार मखसूस अहदाफ है। हम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और धमकियों की शदीद मजम्मत करते हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने दावा किया है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 नहीं 10 अरब डॉलर हैं। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के वाजिबुल अदाद कर्ज वक्त पर वापस कर रहे हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बहुत जल्द दोबारा मुस्तहकम होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 नहीं 10 अरब डॉलर हैं। कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद 6 अरब डॉलर भी पाकिस्तान के हैं। इसहाक डार ने कहा कि आलमी मालियाती फंड्स का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। जिनीवा में भी IMF हुक्काम से मुलाकात होगी। जिनीवा से वापसी पर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में रुकूंगा। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक से फंड्स जल्द पाकिस्तान को मुंतकिल होंगे।
آپ کو اس خبر سے ایک بار پھر آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 4 نہیں 10 ارب ڈالر ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کے واجب الاداد قرض وقت پر واپس کر رہے ہیں۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر بہت جلد دوبارہ مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 4 نہیں 10 ارب ڈالر ہیں۔ کمرشل بینکوں کے پاس موجود 6 ارب ڈالر بھی پاکستان کے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ جنیوا میں بھی IMF حکام سے ملاقات ہوگی۔ جنیوا سے واپسی پر 3 روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات میں رکوں گا۔ سعودی عرب سمیت دوست ممالک سے فنڈز جلد پاکستان کو منتقل ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے کہا ہے کہ LCs نہ کھلنے سے ملک میں 30 سے 40% انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ توانائی کے بحران اور خام مال کی LCs نہ کھلنے کے باعث معیشت کو نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت نہ بدلتی تو ملکی معیشت کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ MD IMF نے وزیر اعظم کو فون کرنے کی تردید کر دی۔ فون کال کا کہہ کر بھی قوم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ PTI رہنما نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے کی سخت شرائط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ کیس ختم کرانے آنے والوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم نے NRO2 کی قیمت ادا کر دی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کا سخت بحران آنے والا ہے۔ پچھلے 9 ماہ میں معیشت ایسی ہو چکی ہے کہ آگے تباہی ہوگی۔ ملک کو بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دیا گیا۔ حماد اظہر نے کہا کہ NRO2 کو قوم مسترد کر چکی ہے۔ وزیر اعظم کو قوم کو مسائل پر اعتماد میں لینا ہوگا۔ خام مال کی LCs نہیں کھل رہی، 40% انڈسٹری بند ہو گئی۔ پاکستان میں توانائی کا بحران ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نمائندے پیسوں کی خاطر بیرون ملک جا رہے ہیں۔ IMF اب سخت شرائط کا کہے گا، جو ماننے سے مہنگائی 40% زیادہ ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے۔ ہم اداروں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں۔ منحرف اراکین کی نئی سیاسی جماعت بننے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پنجاب میں اعتماد کے ووٹ کے لیے ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے 11 تاریخ کو دیکھ رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فواد چودھری نے کہا کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ موجودہ حکمران سعودی عرب اور چین سے امداد کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ اس ہفتے مہنگائی میں 31% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مہنگائی میں مزید 3 گنا اضافہ ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور PTI کے لیڈرشپ کی وجہ سے ملک میں انتشار نہیں پھیل رہا ہے۔ عوام اگر لیڈرشپ کے بغیر باہر نکلی تو ملک میں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔ 22 کروڑ کے ملک کی 66% آبادی 28 سال سے کم عمر ہے۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے لوگ طاقت اور کسوٹی سے کسی کو نہیں دبا سکتے۔ اگر بات ہاتھ سے نکل گئی تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پہلی شہادت میرپور خاص میں ہو گئی ہے۔ اب مہنگائی کی جگہ ٹھکائی مارچ ہو سکتا ہے۔ شیخ رشید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر 4.5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، جو 20 روز سے کم کا امپورٹ ہے۔ 9 ماہ کی تباہی اور ڈیفالٹ سے بچنے کا روڈ میپ چاہیے۔ سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ 76 رکنی کابینہ ایک آٹے کا تھیلا نہیں دے سکی۔ 100 دنوں میں الیکشن شیڈیول دینا ہوگا، ورنہ تباہی ہوگی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پہلی شہادت میرپور خاص میں ہو گئی ہے۔ اب مہنگائی کی جگہ ٹھکائی مارچ ہو سکتا ہے۔ شیخ رشید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر 4.5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، جو 20 روز سے کم کا امپورٹ ہے۔ 9 ماہ کی تباہی اور ڈیفالٹ سے بچنے کا روڈ میپ چاہیے۔ سابق وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ 76 رکنی کابینہ ایک آٹے کا تھیلا تک نہیں دے سکتی۔ 100 دنوں میں الیکشن شیڈیول دینا ہوگا، ورنہ تباہی ہوگی۔
सियासी मंजरनामे पर नई सफबंदी का मामला। जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा ओन चौधरी ने नई पार्टी बनाने की खबरों की तस्दीक कर दी है। जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा ओन चौधरी का कहना है कि जहांगीर तरीन, अलीम खान या चौधरी सरवर कोई नई जमात नहीं बना रहे। हम इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत के साथ ही खड़े हैं। उनका कहना था कि तरीन ग्रुप मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी है और रहेगा। इससे कबल सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान ने किसी भी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद की थी। आपको एक बार फिर आगाह करें कि सियासी मंजरनामे पर नई सफबंदी का मामला। जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा ओन चौधरी ने नई पार्टी बनाने की खबरों की तरदीद कर दी है। जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा ओन चौधरी का कहना है कि जहांगीर तरीन, अलीम खान या चौधरी सरवर कोई नई जमात नहीं बना रहे। हम इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत के साथ ही खड़े हैं। उनका कहना था कि तरीन ग्रुप मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी है और रहेगा। इससे कबल सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान ने किसी भी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद की थी। तर्जमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर एक ज़रई मुल्क में आटे के लिए अवाम मरने लगे तो इसे ही डिफ़ॉल्ट कहते हैं। तर्जमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में कहा कि कल सिंध में एक शहरी सस्ता आटा लेते हुए भगदड़ मचने से जान की बाजी हार गया। उन्होंने कहा कि एक ज़रई मुल्क में आटे के लिए अवाम मरने लगे तो इसे ही डिफ़ॉल्ट कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है। जाली हुकूमत के नाअहल वज़रा के चेहरों पर कोई शर्मिंदगी नहीं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 15 जनवरी को कराने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में बेंच का महफूज किया गया फैसला कल सुनाया जाएगा और कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल कर ली है और इलेक्शन कमीशन ने MQM की जानिब से दोहरी लिस्टों का इल्ज़ाम रद्द कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक कराची और हैदराबाद के इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ तारीख मुलतवी हुई। 29 अप्रैल को बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने पर कोई नई लिस्ट नहीं थी। नई यूनियन कौंसिल और वार्ड बनाना सूबाई हुकूमत की अथॉरिटी है। नई वार्ड और यूनियन कौंसिल बनने के बाद हल्का बंदियां होती हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि आजकल चारों तरफ मायूसी छाई हुई है। इंशाल्लाह मुल्क मुश्किल हालात से निकलेगा और फले फूलेगा। असद उमर ने कन्वेंशन में खिताब करते हुए कहा कि शहर में इमरान खान के अलावा किसी का वोट नहीं। 2023 इलेक्शन का साल है। तीनों का अलग शिकार करने के बजाय एक साथ शिकार करेंगे। बल्ले के डर से इकट्ठे होने वालों का एक साथ शिकार करेंगे। साबिक विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि मुल्क पर चोर मुसल्लत हैं, मुल्क को लूटा जा रहा है। इमरान खान चंद माह बाद दोबारा वजीर आजम बनेंगे। 15 जनवरी को सब ने घरों से निकलना है। इस बार सिंध में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। मेयर कराची PTI का होगा। असद उमर ने कहा कि अवाम अब बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं करेंगे। ये लोग मिल जाएं तो अच्छा है, शिकार करने में आसानी होगी। पाकिस्तान के फैसले सिर्फ अवाम करेंगे। कराची में भी तहरीक इंसाफ की फतह होगी। 90% रेवेन्यू देने वाले कराची को हकूक नहीं मिल रहे। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि आजकल चारों तरफ मायूसी छाई हुई है। इंशाअल्लाह मुल्क मुश्किल हालात से निकलेगा और फले फूलेगा। असद उमर ने कन्वेंशन में खिताब करते हुए कहा कि शहर में इमरान खान के अलावा किसी का वोट नहीं। 2023 इलेक्शन का साल होगा। तीनों का अलग शिकार करने के बजाय एक साथ ही शिकार करेंगे। बल्ले के डर से इकट्ठे होने वालों का एक साथ शिकार करेंगे। साबिक विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि मुल्क पर चोर मुसल्लत हैं, मुल्क को लूटा जा रहा है। इमरान खान चंद माह बाद दोबारा वजीर आजम बनेंगे। हाय रे महंगाई, कराची से खैबर तक एक ही दहाई। सस्ते बाजारों में भी महंगाई का तूफान है। गरीब परेशान हो गए। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए। चिकन के दाम 700 रुपए तक पहुंच गए। फी दर्जन अंडे 295 रुपए में दस्तयाब हैं। अदरक और लहसुन 400 रुपए में बिकने लगा। भिंडी 240, प्याज 220। सब्ज मिर्च की कीमत 125 रुपए हो गई। फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर।
सेब 280, अनार 350 और अंगूर 240 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। इधर लाहौर में बढ़ती महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। आटे और चिकन के साथ सब्जियां और दालें भी गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। मार्केट में सरकारी निर्खनामों की बजाय दुकानदार मुंह मांगे दामों पर सब्जियां और फल फरोख्त कर रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इस वक्त चक्की का आटा 160 जबकि मुर्गी का गोश्त 572 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। हांडी का लाजमी जूस समझे जाने वाला प्याज अभी भी 210 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अदरक 370, लहसुन 300 और सब्ज मिर्च की सरकारी कीमत 125 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। टमाटर और मटर की सरकारी कीमत 70 रुपए मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में इस कीमत पर कहीं भी दस्तयाब नहीं। खरीदारी के लिए आए शहरी कहते हैं 2 वक्त तो दूर 1 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल तर होने लगा। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी मार्केट से मुकम्मल तौर पर गायब हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आपको आगाह करें कि तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब और डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर नईम अफजल का कहना है कि पंजाब में गंदम की किल्लत नहीं है। नईम अफजल ने कहा कि सूबे में गंदम का कोटा बढ़ाकर 23,000 टन करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि खुदबुद में मुलव्विस 100 मिलों का कोटा लाइसेंस मुअत्तल करके मजमूई तौर पर 11 करोड़ रुपए के जुर्माने किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब पेशावर में आटे की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद नान भाइयों ने रोटी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद 170 ग्राम की रोटी 30 रुपए की फरोख्त होने लगी। गंदम और आटे के बहरान के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने फ्लोर मिलों को गंदम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गंदम और आटे के बहरान से निमटने के लिए फ्लोर मिलों को गंदम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल करने के साथ सरकारी आटे की फरोख के मकामात को भी दुगना कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबे भर में रोज 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। पीर से फ्लोर मिलों को इनके मुतालबे से ज्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम जारी की जाएगी। परवेज इलाही ने यह भी कहा कि सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में कमी आएगी। आपको एक बार फिर आगाह करें कि गंदम और आटे के बहरान के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने फ्लोर मिलों को गंदम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गंदम और आटे के बहरान से निमटने के लिए फ्लोर मिलों को गंदम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल करने के साथ सरकारी आटे की फरोख के मुकामात को भी दुगना कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबे भर में 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आलमी मालियाती फंड के तर्जुमान ईस्टर पीरिस का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से MD-IMF की जिनीवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से तामीराती बातचीत हुई है। तर्जुमान IMF का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD-IMF से 9 जनवरी को जिनीवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से बातचीत हुई। IMF तर्जुमान ने बताया कि जिनीवा में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस लचकदार पाकिस्तान के सिलसिले में हो रही है। MD-IMF ने पाकिस्तान में सैलाब से बराह रास्त मुतासिर होने वालों के लिए हमदर्दी का इजहार किया है। IMF पाकिस्तान के सैलाब से पायदार बहाली की मदद करता है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि आलमी मालियाती फंड के तर्जुमान ईस्टर पीरिस का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से MD-IMF की जिनीवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से तामीरी बातचीत हुई है। तर्जुमान IMF का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के MD-IMF से 9 जनवरी को जिनीवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से बातचीत हुई। IMF तर्जुमान ने बताया कि जिनीवा में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस लचकदार पाकिस्तान के सिलसिले में हो रही है। आपको बताएं कि CTD पेशावर रीजन और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक हुए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए अचनी सरबंद में कार्रवाई की। संगू सरबंद जिला खैबर बॉर्डर पर दहशतगर्दों ने जवानों को देखते ही भागने की कोशिश में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी,
दहशत गर्दों और ऑपरेशन टीम्स के दरमियान फायरिंग का सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। फायरिंग रुकने के बाद इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में कम से कम 4 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दहशतगर्दों के चंद साथी तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। हलाक दहशतगर्द मुतादिद मुकामात में सीटीडी को मतलूब थे। दहशतगर्दों के कब्जा से 4 क्लाशनकोफें और 3 हैंड ग्रेनेड्स बरामद कर लिए गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदन तंजीम से बताया गया है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि सीटीडी पेशावर और रीजन की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए अशनी सरबंद में कार्रवाई की। संगू सरबंद जिला खैबर बॉर्डर पर दहशतगर्दों ने जवानों को देखते ही भागने की कोशिश में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दहशतगर्दों और ऑपरेशन टीम्स के दरमियान फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। फायरिंग रुकने के बाद इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में कम से कम 4 दहशतगर्द हलाक हुए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी हाउस के कयाम का ऐलान कर दिया। सऊदी G20 यंग एंटरप्रेन्योर्स अलायंस के सदर शहजादे फहद बिन मंसूर ने लाहौर में 3 रोजा टेक मूड फ्यूचर फेस्ट कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल खताब के दौरान पाक सऊदी टेक्नोलॉजी हाउस के कयाम का ऐलान किया। शहजादा फहद बिन मंसूर ने कहा कि पाक सऊदी टेक हाउस का हेडक्वार्टर रियाज में बनाया जाएगा और इसकी पहली शाख लाहौर में खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरा पाकिस्तान का सफर 5 साल कबल लाहौर में एक IT कंपनी के कयाम के इम्कानात तलाश करने के लिए शुरू हुआ था, जबकि पाकिस्तान में हर शोबे के हवाले से वसाइल मौजूद हैं। चमन, कोयटा समेत शमाली बलोचिस्तान के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता शब से जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और कोयटा, चमन, शमाली बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई है। बिजली न होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रह सकता है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि चमन, कोयटा समेत शमाली बलोचिस्तान के मुख्तलिफ बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता शब से जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और कोयटा, चमन, शमाली बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। बिजली ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रह सकता है। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के हुक्म पर लाहौर पुलिस मुतहरिक हो गई। शदीद सर्दी में भी शहरियों की जानो माल की हिफाजत में मसरूफ लाहौर पुलिस ने चेकिंग के अमल को तेज करने के लिए जगह जगह नाकेबंदी कर ली। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा सख्त सर्दी में भी नाकेबंदी को क्यों किया जा रहा है लाहौर में? जिस तरह से सख्त सर्दी पड़ रही है तो वहीं पर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जानिब से शहर लाहौर के सड़कों पे जो है वो नाका है। ये नाकाबंदी शहरियों की जान, माल, इज्जत की हिफाजत के लिए जो है वो की जा रही है। जिस तरह से बात की जाए जराइम पेशा अफराद की सरकोबी के लिए क्राइम हॉटस्पॉट, कमर्शियल मार्केटों, बैंकों, अहम शहरात मकामात और मार्केटों, बैंकों और अहम मकामात पर जो है वो स्पेशल नाके लगाए गए हैं CCPO लाहौर की जानिब से। जिस तरह से SHO, चौकी इंचार्ज, मुतलका अफसरान इलाकों में इन नाकों पर खुद मौजूद होंगे, जबकि सुपरवाइजरी अफसरान नाकों पर चेकिंग के अमल का जायजा ले रहे हैं और ब्रीफिंग भी दी जा रही है। जिस तरह से बात की जाए अगर नाकों पर तैनात एहलकार अलर्ट होकर ड्यूटी दे रहे हैं तो वहीं पर गिरजाघरों, अमाम बारकों, मज़ारात, गैर मुल्की कौंसलेट समेत हसास मुकामात के इतराफ जो है वो
सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। जिस तरह से फिर बात की जाए अगर गुज्जरपुरा, गड़ी शाहू, लामा इकबाल रोड, जंडरन रोड, शालीमार लिंक रोड, मुगलपुरा के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो जनरल होल्ड अप किया जा रहा है। भगवानपुरा, दरोगावाला, इसके अलावा न्यू एयरपोर्ट, बेदिया, मनामा की कनाल रोड, सदर गोल चक्कर पर नाकाबंदी की गई है। धर्मपुरा रेलवे स्टेशन, वर्कशॉप, डिफेंस रोड, जोड़ेपुर, हरबंसपुरा पर भी नाकाबंदी की जा रही है। इसी तरह से कॉलेज रोड, टाउनशिप, रायविंड, गुरु मांगट और रोड और इसके अलावा सुबह असल रोड पर भी जो है वो जर्नल होल्ड अप किया जा रहा है। दाता दरबार, शफीकाबाद, अकबरी गेट, ग्रेटर इकबाल पार्क, नारियडा समेत मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की जा रही है। बात की जाए मौसम की तो जिस तरह से सर्द मौसम है लेकिन महकमा पुलिस के जवानों ने जो है वो वर्दी पहन रखी है और सड़कों के ऊपर जो है वो नाकाबंदी की जा रही है। सीसीपीओ लाहौर के हवाले से बताता चलें डीएजी ऑपरेशन के साथ ये सरकारी गाड़ी पर आउट है और नाकाबंदी को जो है वो चेक भी किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में स्टेट ऑफिस की तरफ से सरकारी क्वार्टर्स को दिए गए नोटिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। चेयरमैन आज़ाद अवाम तहरीक जावेद इंतजार की ज़ेर क़यादत सितारा मार्केट चौक में किए गए मुजाहिरे में सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने ज़ालिमाना नोटिस के खिलाफ नारेबाजी की, हुकूमत से नोटिस पर कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए जावेद इंतजार ने कहा कि नोटिस में कानूनी और इदारती पेचीदगियाँ हैं, इम्कानात हैं कि इन इजाफी कमरों की तामीर, तजावुजात और किराए पर कमरे देने में ज़मीनी हक़ाइक़ की ज़िम्मेदार तहकीक तलब है। नोटिस में कार्रवाई से सरकारी मुलाजमीन हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे। उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सरकारी मुलाजमीन के नाम से तंजीम का ऐलान करते हुए कहा कि चिड़ियाँ भी आपस में इत्तेहाद कर लें तो शेर की खाल खींच सकती हैं। तहरीक की प्लेटफॉर्म से सरकारी मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। चमन, कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान के मुख्तलिफ बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता शब से जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और कोयटा, चमन, शुमाली बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। बिजली ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रह सकता है। आपको बताएं कि चीन ने आज से अंदरूने मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए लाजमी करंतना की पाबंदी खत्म कर दी है। चीन में अंदरूने मुल्क सफर करने वालों के लिए लाजमी करंतना की पाबंदी खत्म कर दी गई, जिसके बाद मुसाफिर बिना किसी पाबंदी के चीन में सफर कर सकेंगे। चीन में कमरी साल की 40 रोजाना छुट्टियों का आगाज हुआ है, जिनमें लोग बड़ी तादाद में अंदरूने मुल्क सफर करते हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी सालाना नकलो हरकत कहा जाता है। चीन में 2020 में फैलने वाली कोरोना की वबा के बाद ये पहली छुट्टियां होंगी जिनमें अंदरूने मुल्क सफर पर पाबंदियां नहीं लगाई गई। चीन की ट्रांसपोर्ट की वजारत ने कहा है कि अगले 40 रोज में 2 अरब से जायद लोग सफर करेंगे। करंतना की पाबंदी खत्म करने के बायस जहां मईशत की बहाली की उम्मीद है, वहीं तेजी से फैलते कोरोना वायरस के बढ़ने का भी इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि छुट्टियों के बाद निस सदी में पहली बार सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली 17 खरब डॉलर की चीनी मईशत के फिर से बहाली की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ चीन की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी को कोरोना वायरस का खतरा भी लाहक है। गुज़िश्ता साल के आखिर में चीन के शहरियों की जानिब से कोरोना पाबंदियों के खिलाफ शदीद मुजाहिरे किए गए थे, जिसके बाद कोरोना पाबंदियां खत्म करने के फैसला किया गया था। अमरीकी अवाम नुमाइंदगान में सोशल मीडिया वीडियो ऐप टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक जारी करदा नोटिस में टिकटॉक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का कहा गया है। टिकटॉक को सिक्योरिटी खदशात के बायस अरकान के लिए खतरा करार दिया गया है। अमरीकी हुकूमत की जानिब से तमाम सरकारी डिवाइसेस पर टिकटॉक की पाबंदी लगाए जाने का भी इम्कान है। अमरीकी पॉलिसी साजों ने टिकटॉक को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए कहा था कि चीनी हुकूमत टिकटॉक पर दबाव डालकर अमरीकी सारिफीन का डाटा हासिल कर सकती है, जो कि चीनी इंटेलिजेंस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बताएं कि सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने नफरत अमेज मवाद पर नजर रखने वाले मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर के इंतजामिया ने मुलाजमीन में कमी करते हुए नफरत अमेज मवाद को कंट्रोल करने वाली टीम के 12 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। गलत मालूमात, आलमी सतह पर होने वाली
अपीलों और ट्विटर पर मौजूद सरकारी मीडिया के अकाउंट से मुतालिक पॉलिसी पर काम करने वाली टीमों में से कई अफराद को नौकरी से निकाला गया है। ट्विटर की नायब सदर ने मुलाजमीन की बरतरफी की तस्दीक करते हुए कहा कि ट्रस्ट एंड सेफ्टी के डिपार्टमेंट में हज़ारों की तादाद में अफराद मवाद को इत्तदाल पसंद बनाने पर काम करते हैं और इन मुलाजमीन को नहीं हटाया गया जो ये काम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद नवंबर में तकरीबन 3,700 मुलाजमीन को निकाला था, जबकि सैकड़ों की तादाद में मजीद अफराद मुस्ताफी हो गए थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली वनडे इंटरनेशनल सीरीज की ट्रॉफी निकाब कुशाई की तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में हुई। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और न्यूजीलैंड कप्तान केन विलियमसन ट्रॉफी की निकाब कुशाई में शरीक हुए। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले मैचेस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे मैचेस 9, 11 और 13 जनवरी को कराची में शेड्यूल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।